Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 14 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी कितनी सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स को प्रोक्योर किया फॉर 800 करोड़ रुपीज़, और किस कंपनी के द्वारा करा ये भी बताओ। तो कंपनी का नाम देखते हैं सबसे पहले, सिग सॉर इनकॉर्पोरेशन। ये यूएसए की कंपनी है एंड इनके द्वारा यहाँ पर 800 करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जहाँ पर हमने 70,000 और सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स को प्रोक्योर किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया, इंडियन आर्मी के लिए किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रोक्योर की 70,000 सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स इंडियन आर्मी के लिए 800 करोड़ की लागत से। एंड ये सिक्स और इनकॉर्पोरेशन एक यूएसए बेस्ड कंपनी है जिनसे इनको प्रोक्योर करा गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलेंगे। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन टर्मिनल कहाँ सेटअप किया जाएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहीं पे लिख लो कि इंडिया की जो पहली बुलेट ट्रेन होगी किन दो लोकेशंस के बीच में वर्क करेगी, राइट, किन सिटीज को कनेक्ट करेगी, और जो पहली बुलेट ट्रेन फ्लैग ऑफ की जाएगी किन दो सिटीज के बीच में होगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट बुलेट ट्रेन टर्मिनल कहाँ सेटअप किया जाएगा। तो ये साबरमती में किया जाएगा। साबरमती कहाँ है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। अगर स्टेट का नाम आ जाता है कि किस स्टेट में इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन टर्मिनल को सेटअप किया जाएगा, तो वो गुजरात रहेगी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि जो पहली बुलेट ट्रेन होगी वो किन दो सिटीज़ के बीच में वर्क करेगी। तो अहमदाबाद से लेके वो वर्क करेगी मुंबई, राइट, अहमदाबाद से मुंबई। मतलब अगर स्टेट पूछा जाए तो गुजरात से महाराष्ट्र तक की आपकी पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। और इसका पहला टर्मिनल कहाँ बन रहा है, बुलेट ट्रेन टर्मिनल अहमदाबाद, साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक, और जो ये पहली बुलेट ट्रेन है इसका काम कब तक पूरा हो जाएगा, 2026 तक ये एक्सपेक्टेड है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग। हम जानते हैं जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमने देखा कि स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट। पिछले कुछ 10 सालों से भी हमने देखा कि बहुत सारी फंडिंग मिल रही थी इंडिया को। इंडिया में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे थे, मुंह मोली फंडिंग मिल जाती थी। लेकिन जब से कोविड-19 आया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, फिर यूएस ने बहुत सारा पैसा भी प्रिंट कर दिया, फिर बोला जा रहा है देयर इज़ अ ह्यूज चांस ऑफ रिसेशन 2024 में आ जाए। तो इन सारे फैक्टर्स को देखें, फिर वॉर्स भी अभी कई जगह पे चल रही हैं, तो इन सभी फैक्टर्स को अगर हम देखें तो जो जॉब मार्केट है ना वो बहुत ज़्यादा हिली हुई है, और जो नए फंडिंग मिलती है, जो न्यू स्टार्टअप्स को यहाँ पे फंडिंग देखने को मिलती है, वो हमने देखा उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। 73% ड्रॉप आया है इन स्टार्टअप फंडिंग इन 2023।
तो यहाँ पे अगर रैंक की पूछी जाए तो इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाता है इन दिस ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग। यहाँ पे अगर बात करें टॉप पोजीशन पे वो कौन सी कंट्री है विद द हाईएस्ट स्टार्टअप फंडिंग, यूएसए, दूसरे पोजीशन पे यूके, फिर आ जाता है चाइना, फ्रांस 4th पोजीशन पे एंड इंडिया हमारा 5th पोजीशन पे है। ठीक है, अगर यहीं देखें 2022 का डाटा तो $25 बिलियन की यहाँ पे हमें फंडिंग देखने को मिली थी, लेकिन वहीं अगर हम 2023 का देखें 5 दिसंबर 2023 तक ये डाटा सिर्फ $7 बिलियन का रह गया है। फिर अगर बात करें इस डाटा की, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया था, तो ट्रैक्शन जियो के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। राइट, तो याद रखेंगे ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये एक लीडिंग ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है और इन्हीं के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, ट्रैक्शन जियो एनुअल रिपोर्ट इंडिया टेक 2023, जिसमें बताया गया 73% डिक्लाइन इन फंडिंग फॉर द इंडियन टेक स्टार्टअप्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें इन्होंने बताया कि इंडिया में 74.1% इंडियन ऐसे हैं जो कि एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। राइट, हेल्दी डाइट क्या होती है, जब आप प्रॉपर मिनरल्स ले रहे हैं, विटामिन आपकी बॉडी को मिल रहा है, प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रॉपर एनर्जी आपकी बॉडी को मिल रही है, ताकि आप जो डे टू डे टास्क है ना वो ईजिली कर सकें। करेक्ट, तो अभी एक डाटा रिलीज किया गया जहां पे बताया गया कि इंडिया में जो अनअफोर्डेबिलिटी है हेल्दी डाइट की वो है 74.1%। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं, 5वां एडिशन है इस रिपोर्ट का। एंड यहीं पर अगर देखें तो 2022 में अगर मैं बात करूं 2022 की 21 का डाटा, ये नॉट 22, 2021 की, तो 74.1%। अगर 2020 का देखूं तो 76.2% लोग, मतलब कहीं ना कहीं देखें तो थोड़ा सा अफोर्डेबल हो गया इंडिया इन कंपेयर्स टू हैविंग इन हेल्दी डाइट। राइट, वरना अभी भी अगर देखें तो 3/4 लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि हेल्दी डाइट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। राइट, एक हो गया आपका परचेजिंग पावर पैरिटी के अगर हिसाब से देखें कि इंडिया और यूएसए में भी हम देखें तो हर जगह आपको लोग दिखेंगे, बहुत रिच भी दिखेंगे और बहुत आपको लोअर मिडिल क्लास या फिर उससे ज़्यादा पुअर लोग भी दिखेंगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन भी रहते हैं। करेक्ट, तो उनको क्या होता है, उनको ये मतलब नहीं है कि आज हमें 10 ग्राम प्रोटीन चाहिए या 12 ग्राम प्रोटीन चाहिए। उनको ये होता है कि डेली बेसिस पे उनका कुछ खाने को मिल जाए, सस्ते में खाने को मिल जाए, जाकि उनका पैसा भी ज़्यादा ना लगे एंड उनका पेट भी भर जाए। ठीक, तो ये डाटा रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसी से रिलेटेड अभी आगे एक और न्यूज़ देखेंगे कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक ने दोनों ने टाई अप करा ताकि जो ये फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है ना ग्लोबली, इसको कैसे टैकल किया जाए, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टैट्स इंडिया का कि 74.1% जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 104.3 मिलियन पीपल इंडिया, दे कुड नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट इन 2021। और हेल्दी डाइट नहीं होगी तो क्या है, माल न्यूट्रिशन बढ़ेगा, कमजोरी आएगी शरीर में, डे टू डे वर्क नहीं हो पाएंगे एंड ग्रोथ हैम्पर होगी। नेक्स्ट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ अभी टाई अप करके फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है, जेनजी जनरेशन के लिए लॉन्च किया है एंड जो यूथ की जो लाइफस्टाइल है ना उसको यहाँ पे ये फंड कर सके इसलिए लॉन्च किया गया और ये पावर किया जाएगा मास्टर कार्ड से। डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने ये एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डिजिटल रुपे क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया गया। रुपे पे ये वर्क करेगा। करेक्ट, यूपीआई इससे इजीली हो सकते हैं, यूपीआई से आप अपने रुपे नेटवर्क या यूपीआई से आप अपना जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उसको लिंक कर सकते हैं एंड ईजिली उसी के थ्रू यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने अभी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ कौन है इनके, वो है वी वैद्यनाथन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, 2015 में स्टैब्लिश किया गया। टैगलाइन ऑलवेज यू फर्स्ट। मास्टर कार्ड की बात करें तो मिशेल मेबैक यहाँ के सीईओ, एस्टैब्लिश 1966 और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए। नेक्स्ट आ जाता है सेबी ने अलाउ किया ब्रोकर्स को टू इन्वेस्ट क्लाइंट्स फंड इन ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम, OMFS। ये ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है कि यहाँ पे जो क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा वो रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा जाएगा। राइट, तो अभी सेबी ने अलाउ कर दिया है क्लाइंट्स फंड को, ब्रोकर्स को अलाउ कर दिया, जो आपके स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं क्लियरिंग मेंबर्स, कि वो जो क्लाइंट का पैसा है वो आपका रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो कि है ओवरनाइट म्यूचुअल फंड, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि सेबी ने अभी सस्पेंड कर दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ रेलिज केयर कमोडिटीज
ये एक ब्रोकरिंग फर्म है, राइट। इनका इलीगल इन्वॉल्वमेंट था इन नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड। कई कॉन्ट्रैक्ट्स इनके इलीगल पाए गए, राइट। इनकी जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पे मैच नहीं हुई, इसीलिए इनके यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सेबी की बात करें तो मदाबी पूरीबक चेयरपर्सन रहेंगी एंड यहाँ पे हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट है किस इंश्योरेंस कंपनी ने भी लॉन्च किया एक प्लान विद ऑप्शन टू मॉडिफाई प्रीमियम्स। तो किस इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया एक प्लान विद ऑप्शन टू मॉडिफाई प्रीमियम्स, तो वो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस, राइट। इन्होंने यहाँ पर अभी टाइप किया या फिर इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया जिसका नाम रहेगा अल्फा वेल्थ। और इस अल्फा वेल्थ के हिसाब से आप अपना जो प्रीमियम है, जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो अपना प्रीमियम है उसको चेंज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से, राइट। कैसे भी वो अपना यहाँ पे प्रीमियम चेंज कर पाएंगे। फिर कैनरा बैंक की बात करें, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड इन्होंने 118वें फाउंडर्स डे पे जो कि 19 नवंबर को आता है काफ़ी सारे अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को भी यहाँ पे लॉन्च किया, राइट। फिर इसी के साथ साथ कैनरा बैंक की अगर बात करें तो यहाँ के MD एंड CEO कौन रहेंगे, वो हैं के सत्यनारायण राजू जी एंड हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में। 1906 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड टुगेदर वी कैन, ये आपका एक टैगलाइन रहेगा। मूविंग ऑन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अगेंस्ट रिकॉर्ड फूड एंड सिक्योरिटी। तो अभी जैसे आपने देखा था कि काफ़ी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, लोगों को प्रॉपर जो हेल्दी मील है वो नहीं मिल पाती है इंडिया में ऑलमोस्ट 74.1% लोगों को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, राइट, इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पे टाइप करा ताकि जो ये फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही है ना ग्लोबली, जो लोगों को खाना नहीं मिलता प्रॉपरली, राइट, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कह लो या फिर किसी भी फैक्टर की वजह से कह लो कि वो प्रॉपर अपनी दिन में एक मील को भी प्रॉपरली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों को यहाँ पे खाना पहुँचाने की बात की गई। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, राइट, अलग अलग गवर्नमेंट के साथ यहाँ पे टाइप करके प्रॉपर फूड इन तक पहुँचाया जा सके, इसीलिए ये एक टाइप करा गया बिटवीन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड बैंक। चलिए देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, दे हैव डीपन्ड देयर पार्टनरशिप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ रिकॉर्ड फूड इनसिक्योरिटी। मूविंग ऑन, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस। डोनाल्ड टस्क, इनको इलेक्ट किया गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। मार्क करके चलेंगे डायरेक्ट, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये है डोनाल्ड टस्क और इनको इलेक्ट किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। ठीक, अगर पोलैंड की बात करूं तो कैपिटल क्या रहेगी, वॉर्सा, राइट, वॉर्सा कैपिटल रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं गिनिया बिसाऊ, रिपब्लिक ऑफ गिनिया बिसाऊ, ये इनका फ्लैग रहेगा। और गिनिया बिसाऊ, राइट, इनके जो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं तो वो कौन है, तो याद रखेंगे इनके गिनिया बिसाऊ के प्रेसिडेंट ने रीइलेक्ट कर लिया किनको, जेराल्डो मार्टिन्स को एज देयर प्राइम मिनिस्टर, तो इनको रीअपॉइंट कर लिया टू द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो वो है मोहन यादव जी। ये बीजेपी से बिलोंग करते हैं, राइट। मोहन यादव जी 19th चीफ मिनिस्टर बने हैं मध्य प्रदेश के। इन्होंने किनको रिप्लेस किया, शिवराज सिंह चौहान को रिप्लेस किया टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर है ऑफ मध्य प्रदेश। 2005 से लेके 2023 तक ये चीफ मिनिस्टर थे, राइट। 4 बार 4 टर्म्स इन्होंने संभाली एज द चीफ मिनिस्टर। 16 साल 5 महीने ये ऑफिस में रहे हैं टू बी द चीफ मिनिस्टर। कौन, शिवराज सिंह चौहान। एंड इन्होंने किनको रिप्लेस किया, शिवराज सिंह चौहान ने किनको रिप्लेस किया, किनके द्वारा ये रिप्लेस हुए शिवराज सिंह चौहान, वो है मोहन यादव। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। इनकी बात करें और एक चीज़ और यहाँ पे याद रखेंगे, राजेंद्र शुक्ला एंड जगदीश देवड़ा, इनको यहाँ पे डेप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, अगर मोहन यादव जी की बात करें, ये 3 टाइम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है फ्रॉम उज्जैन दक्षिण साउथ असेंबली। ही वॉज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ हायर एजुकेशन इन द आउटगोइंग शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट। एंड मोहन यादव ये 7th पॉलिटिशियन है फ्रॉम द 66 असेंबली सीट स्ट्रॉन्ग मलवार निमार टू हैव बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मूविंग ऑन, एक्विजिशन एंड मर्जर पर आते हैं। तो अभी रिसेंटली सीसीआई ने अप्रूवल दिया टी मैसेक एंड मोतीवाल ऑसवर्ल्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को, ताकि ये नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस में अपना स्टेक बाय कर सके। एंड ये यहाँ पे 800 करोड़ रुपए
बाय करें, इन्वेस्ट करेंगे इन द फर्म फॉर अ माइनॉरिटी स्टेक। नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड्स। ये बाय करेंगे 1.5% स्टेक इन करूर वसाय बैंक फॉर 194.4 करोड़ रुपीस। आई रिपीट, एसबीआई म्यूचुअल फंड ये अभी बाय करेंगे 1.5% स्टेक इन करूर व्यवसाय बैंक फॉर 194.4 करोड़ रुपीस एंड इस अमाउंट से ये 1.2 करोड़ शेयर्स को बाय करेंगे फॉर 194.4 करोड़ रुपीस, जहां पे हर शेयर की वैल्यू आ जाती है 162 रुपीस। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक के ऊपर। तो अभी रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को लॉन्च किया गया जो कि पैसिफिक रीजन में सर्वेलेंस करने के काम आएंगी। पहली है क्रास्नोयार्स्क और दूसरी है एम्परर अलेक्जेंडर द थर्ड। तो ये 2 आपकी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक रीजन में। यहाँ पे इसको लॉन्च किया जाएगा ताकि वहाँ पे सर्वेलेंस की जा सके पैसिफिक रीजन की। एंड ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ये याद रखेंगे। किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। क्रास्नोयार्स्क एंड दूसरी है एम्परर अलेक्जेंडर द थर्ड। नेक्स्ट बात करते हैं। तो अभी रतन इंडिया आर्म ने इंट्रोड्यूस किया है एक कॉम्पैक्ट डिलीवरी ड्रोन। सबसे पहले तो याद रखेंगे थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड टीएस, ये सब्सिडरी रहेगी रतन इंडिया एंटरप्राइज इंडिया लिमिटेड की। जो ये रतन इंडिया आर्म की बात कर रहे हैं वो यही है, थ्रॉटल एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो इनके द्वारा अभी एक कॉम्पैक्ट डिलीवरी ड्रोन लॉन्च किया गया जिसका नाम रहेगा L07। राइट, ये क्या है? एक डिलीवरी ड्रोन है। 7 किलो तक का ये पेलोड डिलीवर कर सकता है। करेक्ट, एंड दिस कैन फ्लाई अप टू 2000 मीटर्स अबव द सी लेवल। एंड ये जो ड्रोन है आपका हेल्थ केयर सेक्टर एंड ई कॉमर्स सेक्टर की डिलीवरी में काम करेगा। तो हम कह सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर एंड ई कॉमर्स सेक्टर में ये डिलीवरी का काम करेगा आपका L07 ड्रोन, जो कि थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया। एंड ये कंपनी किसका आर्म है? ये एक सब्सिडरी है रतन इंडिया एंटरप्राइज लिमिटेड की। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं L07, ये क्या है? वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग फैसिलिटी है इसके पास। 7 किलो तक का ये सामान कैरी कर सकता है एंड इट कैन बी डिप्लॉयड सिंगल हैंडेडली इन लेस देन 5 मिनट्स एंड ये ड्रोन कैन फ्लाई अप टू 2000 मीटर्स अबव द मीडियन सी लेवल। नेक्स्ट आ जाते हैं एक नई स्पीशीज ऑफ न्यू मरीन एम्फीफोड, इसको डिस्कवर किया गया चिलिका लेक इन ओडिशा में। आई रिपीट, ओडिशा के चिलिका लेक में अभी एक नई स्पीशीज ऑफ मरीन एम्फीफोड को डिस्कवर करा गया। क्या नाम रहेगा उसका? वो है, इसका जो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर दिया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया डेमारोचेस्टिसिया एलेनेसिस। राइट, डेमारोचेस्टिसिया एलेनेसिस ये नया नाम है ऑफ द न्यू एम्फीफोड डिस्कवर्ड इन द चिलिका लेक इन ओडिशा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। इंडियन नेवी की 56 सबमरीन डे कब देखिए ऑब्जर्व करते हैं हम? 8 दिसंबर को। एंड INS कालावारी, राइट, ये वो पहली इंडियन नेवल शिप थी जो कि इंडक्ट की गई थी इन इंडियन नेवी 8 दिसंबर 1967 को। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए हम 8 दिसंबर को इंडियन नेवी का सबमरीन डे ऑब्जर्व करते हैं। और 2023 में अगर हम बात करें, हमने 56वां सबमरीन डे ऑब्जर्व करा था। राइट, और INS कालवरी ये एक सोवियत क्लास सबमरीन है। एंड कालवरी की अगर हम बात करें, बेसिकली याद रखेंगे कालावारी एक मलयालम वर्ड है एंड इसका मतलब है टाइगर शार्क। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बाय किया 70,000 न्यू सेमी ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स 800 करोड़ रुपए के लिए। 6SOR इनकॉर्पोरेशन, ये एक USA की कंपनी है, इनसे। देन इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन टर्मिनल जो होगा साबरमती में होगा, अहमदाबाद में इन गुजरात। और जो पहली बुलेट ट्रेन बन के रेडी होगी 2026 में, और जो ये इसका पहला टूर होगा या डेस्टिनेशन होगी, कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेगी, तो अहमदाबाद से मुंबई ट्रैवल करेगी। देन ट्रैक्शन जियो एनुअल रिपोर्ट इंडिया टेक 23, इन्होंने बताया कि इंडिया की पोजीशन इन द ग्लोबल स्टार्टअप फंडिंग इन टेक सेक्टर कितनी है? 5th पोजीशन पे। देन 74.1% ऑफ द इंडियंस दे आर अनेबल टू अफोर्ड अ हेल्दी डाइट एज पर द डाटा रिलीज बाय UNFAO। फिर IDFC फर्स्ट बैंक, इन्होंने पार्टनर किया मास्टर कार्ड के साथ ताकि फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। देन सेबी ने अलाउ किया ब्रोकर्स को ताकि वो क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट कर सकें इन ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम, जो कि एक काफ़ी रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इनका पैसा इन्वेस्ट करने की बात करता है। देन इन्होंने सस्पेंड कर दिया रेलिज केयर कमोडिटीज़ का भी लाइसेंस। नेक्स्ट
कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस इन्होंने लॉन्च किया अल्फा वेल्थ प्लान। ये एक प्लान है जहाँ पे ये अपने प्रीमियम्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन्होंने डीपन की पार्टनरशिप अगेंस्ट बैकड्रॉप ऑफ रिकॉर्ड फूड इनसिक्योरिटी। डोनाल्ड टस्क इनको इलेक्ट किया गया एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड। नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ गिनिया बिसाऊ, राइट। इनके प्रेसिडेंट ने अभी रीअपॉइंट किया जेराल्डो मार्टिन्स को एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ गिनिया बिसाऊ। नेक्स्ट आ जाते हैं मोहन यादव, इनको भी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। एंड राजेंद्र शुक्ला एंड जगदीश देवडा, करेक्ट, इनको डेप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। देन सीसीआई ने अप्रूवल दिया टिमास्क एंड मोतीवाल ऑसवर्ल्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को, ताकि ये स्टेक बाय कर सकें इन नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। SBI म्यूचुअल फंड ने बाय किया 1.5% स्टेक इन करूर वसाई बैंक फॉर 194.4 करोड़ रुपीस। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इन्होंने अनवेल की 2 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है रतन इंडिया का आम, इन्होंने अभी एक डिलीवर किया ड्रोन, इन्होंने अभी एक लॉन्च किया है डिलीवरी ड्रोन, करेक्ट, वो हेल्थ केयर एंड ई-कॉमर्स सेक्टर में डिलीवरी का काम करेगा। देन नई स्पीशीज ऑफ एम्फीफोर्ड इसको डिस्कवर किया गया, कहाँ पर, चिलिका लेक इन ओडिशा स्टेट। एंड लास्ट आ जाता है इंडियन नेवी का सबमरीन डे ऑब्जर्व किया गया 8 दिसंबर को, और ये 56 एडिशन था इस सबमरीन डे का जो 2023 में ऑब्जर्व करा गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स रिसेंटली गॉट GI टैग फ्रॉम उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट से अभी कितने प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला, और ये हाईएस्ट एवर है कि एक दिन में इतने प्रोडक्ट्स को किसी भी जगह से GI टैग मिला है। तो 18 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर अभी GI टैग मिला। इन 18 प्रोडक्ट्स से अगर हम बात करें तो 13 तो एग्रीकल्चर गुड्स रहेंगे, 4 हैंडीक्राफ्ट गुड्स रहेंगे, 1 फूड स्टफ रहेगा और 1 मैन्युफैक्चर्ड गुड रहेगा, जिसको यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी GI टैग से सम्मानित किया गया। और उत्तराखंड के ये प्रोडक्ट्स रहेंगे जिनको GI टैग मिला। एंड ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स को, 18 प्रोडक्ट्स को एक ही दिन में GI टैग से सम्मानित किया गया हो। अगर चीफ मिनिस्टर की बात करें उत्तराखंड के तो पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन रहेंगे यहाँ पर, जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है उत्तराखंड की, वो है आपकी देहरादून। और उत्तराखंड में ही एक कंगडाली फेस्टिवल भी होता है, कंगडाली फेस्टिवल भी ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी मार्क करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गेट द हाईएस्ट नंबर ऑफ 18 GI टैग्स इन अ सिंगल डे। एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी इन्होंने ऑफिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड द GI सर्टिफिकेट टू दीज प्रोडक्ट्स। एंड विद दिस 18 न्यू प्रोडक्ट्स द टोटल नंबर ऑफ GI प्रोडक्ट्स इन उत्तराखंड हैज बिकम कितना, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे डैश, करेक्ट। कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए हैं GI प्रोडक्ट्स इन उत्तराखंड, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, हम जानते हैं तमिलनाडु में हाईएस्ट, और तमिलनाडु इज द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स, इसके कितने टैग्स हैं, ये 2 नंबर आप मुझे कमेंट करोगे। उत्तराखंड में कितने प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है अभी तक, और तमिलनाडु में जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट GI टैग्स मिले अभी तक, उसमें कितने GI टैग्स दिए गए हैं, वो दोनों चीजें आप मेरे को कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द GIS एप्लीकेशन ग्राम मनचित्रा। ये जो ग्राम मनचित्रा ये एप्लीकेशन है, ये याद रखेंगे किसके द्वारा लॉन्च की गई, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस एप्लीकेशन के अंडर क्या होगा कि जो भी पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाएगी विलेजेस के लिए, उससे इस पर्टिकुलर ग्राम मनचित्रा से, इस एप्लीकेशन से, इस GIS एप्लीकेशन से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उनको एनालिसिस करने में, बेटर डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, GIS क्या होता है, जोग्राफिकल और जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो कपिल मोरेश्वर पाटिल इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया आपका जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मनचित्रा। एंड ये एंकरेज कर रहा है टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्पेशल प्लानिंग बाय द ग्राम पंचायत। ये यूटिलाइज करता है जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी टू ऑफर डायनेमिक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फ्रॉम ग्राम पंचायत टू विजुलाइज एंड प्लान डाइवर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स स्पैनिंग नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर एंड मच मोर। ठीक है, एंड ये जो ग्राम मनचित्रा है ये सर्व करेगा एज अ पोर्टल सिस्टम फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, कि जो भी आप ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट प्लान होंगे उनमें एक सहयोग की तरह उसमें हेल्प करेगा, ताकि जो भी ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग में बेनिफिट मिल सके। HDFC बैंक ने भी पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड। तो HDFC बैंक ने अभी टाटा न्यू के साथ पार्टनरशिप की ताकि एक नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके, जो कि है आपका टाटा न्यू HDFC बैंक
क्रेडिट कार्ड। इसको पावर किया जाएगा रुपे एंड वीज़ा से। किससे पावर किया जाएगा? रुपे एंड वीज़ा से इसको पावर करा जाएगा, राइट। दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है, टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC कार्ड एंड टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड। ये दो कैटेगरीज में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को? BESS कंसोर्टियम को ज्वाइन करने वाली वो कंट्री कौन सी बन गई है? तो याद रखेंगे अभी 11 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है COP28 के दौरान, जो कि दुबई UAE में हो रही है, करेक्ट। तो इसके दौरान 11 कंट्रीज में से ज्वाइन किया, लेकिन उसमें से जो इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है वो क्या है? हमारी इंडिया, राइट। इंडिया वो कंट्री बनी जिन्होंने अभी BES कंसोर्टियम को ज्वाइन करा है। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय विच ईयर? तो इनके हिसाब से इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। अभी USA टॉप पर है, फिर आ जाता है चाइना, थर्ड पर है जर्मनी, फिर है फ्रांस, आई करेक्ट माई सेल्फ, फिर है जापान, और फिफ्थ पर है हमारा इंडिया। इवन इंडिया ने अभी $4 ट्रिलियन की GDP को भी क्रॉस किया, और सून 2030 तक इंडिया थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसा प्रेडिक्ट करा जा रहा है, राइट। फिर यहीं पे डाटा देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024, न्यू रिस्क न्यू प्लेबुक, ये S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा रिलीज की गई, एंड इंडिया इज सेट टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2030, एंड इट इज प्रोजेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 3 years। यहीं पे डाटा देखें तो GDP सेट टू ग्रो बाय 6.4% इन 2020 फिस्कल ईयर 24, जो कि 40 बेसिस पॉइंट हायर है देन द प्रीवियस फॉरकास्ट। देन बात करें 25 में तो 6.4% से, फिस्कल ईयर 26 एंड 27 में 6.9 एंड 7% रिस्पेक्टिवली। फिर इंडिया की जो नॉमिनल GDP है इज एक्सपेक्टेड टू राइज फ्रॉम 3.5 ट्रिलियन इन 2023 और 22, और अभी मैं बता रहा हूँ 2023 में इन्होंने $4 ट्रिलियन का मार्क अचीव कर लिया है, एंड 7.3 इन 2030। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया वेरियस इनिशिएटिव्स टू एड्रेस मीथेन एमिशंस ग्लोबली? तो कौन सा है? वो है वर्ल्ड बैंक, राइट। मीथेन एमिशंस को, मीथेन होता है CH4, राइट। मीथेन को ग्लोबली रोकने के लिए, उसके एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ये क्या है, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, इससे आपका क्या है, कार्बन एटमॉस्फेयर में जाएगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि कार्बन हीट को ट्रैप कर लेता है, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हीट को ट्रैप कर लेती है, तो अगर कार्बन एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इससे पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इसीलिए एमिशन, मीथेन के एमिशन को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी यहाँ पे वेरियस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए। इन्हीं के द्वारा अभी एक 18 मंथ का ब्लूप्रिंट भी लॉन्च किया गया फॉर मीथेन रिडक्शन, फॉर मीथेन रिडक्शन, ठीक है। इन्हीं के द्वारा 15 नेशनल प्रोग्राम्स को भी लॉन्च किया गया ताकि मीथेन को रिड्यूस किया जा सके। ये जो प्रपोजल्स थे COP28 के दौरान ही लॉन्च किए गए, करेक्ट, जो कि दुबई UAE में हो रही है। अगर फिर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो अजय बंगा यहाँ के प्रेसिडेंट, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? वॉशिंगटन DC में, एंड 1944 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था। यूनियन बैंक ने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू बूस्ट देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने पार्टनर किया असेंचर के साथ, जो कि एक लीडिंग ग्लोबल सर्विस कंपनी है, करेक्ट, ताकि डिजाइन एंड डेवलप किया जा सके स्केलेबल एंड सिक्योर एंटरप्राइज डाटा लेक प्लेटफॉर्म विद एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होमवर्क सेक्शन, और याद रखेंगे 5 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं। आज से कोशिश रहेगी आपको 3 की जगह 5 होमवर्क क्वेश्चन दिए जाएं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। पहला, इंडिया रिसेंटली सेलिब्रेटेड 50 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री इन दिसंबर? तो 50 साल हो गए डिप्लोमेटिक टाइज पे, मतलब हम कह सकते हैं गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करी अब हमने, किसके साथ बताओ? दूसरा, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, ये एक इनिशिएटिव था, MEITY के द्वारा ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, नाम बताओ। और ये जो इनिशिएटिव है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, हम देख रहे हैं AI बेस्ड रहेगा, लेकिन इसका काम क्या रहेगा वो भी बताओ। तीसरा, बानी ग्रासलैंड्स, ये भी न्यूज़ में थी, ये किस स्टेट या UT से बिलोंग करती हैं। चौथा, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 5 जोनल काउंसिल्स ऑफ इंडिया। और पांचवा, विच इज़ द स्पॉन्सर बैंक ऑफ NARCL, जो कि है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड।
तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। एंड अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे मैं ला सकूँ। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.